হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। আমি পিয়ান্স ব্লগের আরেকটি ব্লগে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আর এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা। আর এখন আমরা বদ্রীনাথ থেকে আজকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আর এখন যাবো হচ্ছে আজকে আমরা পুরো হরিদ্বার। আজকে অনেকটা জার্নি আছে। সেই আজকে ডাইরেক্ট গিয়ে পৌঁছাবো, আজকে গিয়ে পৌঁছাবো হরিদ্বার। হরিদ্বারে গিয়ে কালকে থাকা। সেটাই তো বললি, হরিদ্বার পৌঁছাবি, জার্নিটা অনেকটা আছে। বলে মনে বদ্রীনাথ। আর তাহলে তোদের একটা জিনিস দেখাই, পেছনে দেখো রামধনু উঠেছে। বুঝতে পারবে কিনা জানি না। সকাল সকাল বৃষ্টিও হয়ে গেছে, এক বছর আরো বেশি ঠান্ডা হয়ে গেছে। তো চলো এখন আমরা বেরাই, অনেকটা দেরি হয়ে যাবে, অনেকটা জার্নি আছে। চল, অনেকটা জার্নি আছে। ব্রেকফাস্ট করতে বসে আছি আর আমরাই খাবো। আমি আর দাদা খাবো না, ওরাও খাবে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে অর্ডার দিয়েছি, বসে আছি। আজকে তাড়াহুড়ো আছে, আজকেই গিয়ে দেরি হচ্ছে। দাঁড়াও দেখ, যেই জন্য বলে তাড়াহুড়ো করতে নেই, আস্তে ধীরে দাও, দেখাই হল। বল, বলে এতক্ষণ ধরে বসে রাখবে? এত বড় রেস্টুরেন্টের মধ্যে দুখানা। আর একে দেখো, সারাদিন ফোন ঘাটে, আর একে দেখো। ভিডিওটা ছেড়ে দাও, ভাড়াটা কিন্তু আমিও নিয়েছি একটা জিনিস। এবার আমিও বলবো তুই বেশি শিয়া না, কেন তোকে দেখাবো আমি? পিয়া হা করে ঘুমিয়েছিল, সেটাই রাস তুলেছে, ওই নিয়ে আর কি করছে। ঠিক আছে, তুই ঘুমা এবার, দাঁড়া। ছবিটা কি খাচ্ছিস রে? আমরা অর্ডার করে দিয়েছি ছোলে ভাটুরা তিনজন। তো আমরা চাটনিটা টেস্ট আছে না, দেখি চাটনিটা দেখছি দাঁড়া। এটার সাথে খাবারগুলো টেস্ট আছে, ভালো। দই দিয়ে মিক্স করা তো ভালো লাগছে। এমনি ঢুকে যাবি, প্রচুর ফাঁকা। আমরা কর্ণপ্রয়াগ এসে গেছি। আর এই যেই নদীটা একটুখানি মানে পরিষ্কার, সেটা আলাকনন্দা। আর এই পাশের নদীটা পিন্ডার। কেউ মিক্সিং হয়েছে দেখেছো? এরকম তিনখানা আছে। একটা দেবপ্রয়াগে দেখালাম তোমাদের, এটা কর্ণপ্রয়াগ। আর একটা রুদ্রপ্রয়াগে আছে মিশ্রণ। সুন্দর লাগছে বলো? এটা আমাদের হরিদ্বারে যাবার পথেই দেখেছি। এরকম একটা ব্রিজ আছে, কি স্রোত দেখেছো নদীটার? আর ওই নদীটা অলকনন্দা, মানে ও কেদারনাথ দিয়ে আসছে, মন্দাকিনী অলকনন্দা। আর এই বাসটা দেখো, ও বাবা, ব্রিজটা কেমন লাভলি। মর্নিং ফ্রেন্ডস, আমি কালকে এখানে আস্তে আস্তে আমাদের এতটা রাত হয়ে গেছে, রাস্তায় এত প্রচণ্ড জাম ছিল। আমরা এখানে ঢুকলাম কটা, ওই সাড়ে 11টা 12টা। তারপর আমি আর ভিডিওটা মানে আর কন্টিনিউ করতে পারিনি, কারণ এতটা টায়ার্ড ছিলাম। সেই সকাল 7টায় বেরিয়ে ঢুকেছি 11:30, তাও রুমও পাইনি ঠিক করে। কোনো হোটেলে এখানে রুম নেই। লাস্টে কী করবো, এখানে হরিদ্বারে একটা জায়গায় আপাতত রাতটা কাটানোর মতো পেয়েছি। আমরা এর আগে যদি আজকে রুম পাই থাকবো, নয়তো এখান থেকে লক্ষ্মণঝোলা দেখে বেরিয়ে যাবো দিল্লির জন্য। কেন আমার কপালে হয়তো নেই সন্ধ্যা আরতি, আমি আগেরবারও দেখতে পাইনি, এবারও দেখতে পাইনি। আর কি বলো, সব থেকে বড় জিনিস হোটেলই পাওয়া যাচ্ছে না। এমন ধরনের এত দাম, বলতে দামের থেকে বড় কথা রুমই নেই, কোনো হোটেলে রুম নেই। তো এখন একটুখানি তাই বেরিয়েছিলাম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মানে ঘুমালাম, তখন 2টো বেজে গেল। শুধু চোখটা বুঝিয়েছি আলোটা ফোটানোর জন্য, আর কিচ্ছু না। এখন বেরিয়েছি দুজনে, বেরিয়ে একটা এর আগে যে এসেছিলাম, যে হোটেলে ছিলাম ওই হোটেলেও রুম নেই। এবার মেন গন্ডগোল হয়ে গেছে, ওর নামটা মনে ছিল কিন্তু ওটা একটা মানে একটার জায়গায় আরেকটা হয়ে গেছে ওটাই। এই কারণে না আরও গন্ডগোল। যদি বুক করে আসতাম এই জিনিসটা হতো না। তো এখন একটুখানি ব্রিজে এসে একটুখানি ঘুরি, ওরা উঠলে বলি দেখি কী করে। নয়তো ফ্রেশ হয়ে সবাই আবার এই লক্ষ্মণঝোলা রামঝোলা দেখে তারপর এখান থেকে আবার বেরিয়ে যাবো। তোমরা ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো।
ইচ্ছা আছে দিল্লিতে গিয়ে একটু প্রেম মন্দির ঘুরবো, এখন দেখা যাক কতদূর কি করা যায়। আমাদের একটা এটা পুরো প্ল্যানিং, ড্রাইভারটাও আমাদের ভালো না, পুরো সিট ঝোলাচ্ছে, এত ঝোলাচ্ছে। কালকে ড্রাইভারটার জন্য অত রাত হয়ে গেছে। ওনার জন্য তো লেট আছে, প্লাস রাস্তাও কি জাম, এই হয়েছে একটা সমস্যা। আর আমাদের মেন দিল্লিটা প্ল্যানে ছিলই না, হ্যাঁ এখন একটা জায়গা ক্যান্সেল যেহেতু হয়ে গেছে ও পাশে, তো ওই কারণে দিল্লিটা করা হয়েছে। কিন্তু তুংনাথ, আমাদের তুংনাথটা ছিল, এবার দুটো ট্রেকিং আমরা করে উঠতে পারছিলাম না ওই কারণে। হ্যাঁ ওই কারণে যেহেতু আমাদের 1-2 দিন গ্যাপ হয়ে গেল, আমাদের আমাদের বাড়ি ফেরার দিন হচ্ছে 3 তারিখ রাতে, তো আজকে 1 তারিখ, তো ওই কারণে ভাবলাম দেখা যাক। আজকের দিনটা এখানে থাকার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সত্যি খুব আছে, আমার খুব ভালো লাগে মানে হোটেল না পাওয়া যায়, আর ভীষণ ক্রাউড, এত ক্রাউডে না রিল্যাক্সেশন একদম হয় না। আর রিল্যাক্সেশনের থেকে বড় কথা, দেখো ঘর যদি ঠিকমতো পাওয়া যায় কোনো ব্যাপার না, মেন তো এমন ঘর দিয়েছে ছাড় পোকা ভর্তি ঘর। সত্যি তাই, আমি এই সকালবেলা উঠে দেখলাম, আমি তো ভেবেছি আমি আর থাকবোই না, কে থাকবে জানি না, আমি ভাই আর থাকছি না। হ্যাঁ ইচ্ছা ছিল চান করবো গঙ্গায়, কিচ্ছুই মনে হচ্ছে না হবে, দেখা যাক এখন কি হয়। ওই চলো ওরা উঠুক, গিয়ে ডাকি, চলো ওদের ডাকি চ। হ্যাঁ, চল। এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, এত ভালো লাগছে যে কি বলবো। আর আর গঙ্গে কি চওড়া দেখেছো? আর ওটা ওই পাশেরটা হচ্ছে হাটে, এই সিধেটাই হারকে বৌড়ি ঘাট, সিধে না, ওই তো ওই পারে, ওই পারে। ওই পাশে হাটে পড়ি ঘাট। কেউ আসছে কেউ যাচ্ছে, এখন এই হচ্ছে, কিন্তু মেন হচ্ছে শ্রদ্ধা। ফাইনালি আমরা একটা হোটেলের রুম পেয়ে গেছি, একটু শান্তি পেলাম বাবা। এখন যাচ্ছি আমরা লক্ষ্মণঝোলা আর রামঝোলা ঘুরতে। আমাদের ড্রাইভারটা হেভি ডিস্টার্ব করছে, ওই জন্য টোটো করতে এলাম। হ্যাঁ, এর জন্য এখন টোটো করে আমরা যাবো, কোনো ব্যাপার না। তো এসে তারপরে এসে তারপর স্নান করবো। দেখি টোটো। বাবারে, ভাবলাম তো স্নান করতে পারবো না, দেখি না ভালো হয়েছে, এসে শান্তিভাবে ঘুরে এসে স্নান করবো। এখানে তো দুটোই ঘোরার জায়গা, আর কি মন্দির ফন্দির আছে বলতে আমি চিনি না, টুন চলছে না। আমরা এই দুটোই ব্রিজে দেখেছি, মানে রামঝোলা লক্ষ্মণঝোলা দুটোই ঘুরেছি। ওই ওখানে একটু ঘুরে টিফিন খেয়ে তারপর এসে তারপর স্নান করবো। চলো এখন যাই, তারপর আবার ওখানে গিয়ে তোমাদের সাথে সবটা শেয়ার করছি। টোটো কি টুকটুকি? টুকটুকি তো 42-এ। আর আজকে এলাম হচ্ছে আবার ট্রেন করে যাচ্ছে এখন ঋষিকেশ। ভাই ভাই আমরা যাচ্ছি ঋষিকেশের দিকে। আমার তো খুব ভালো লাগে। রিল্যাক্স আরে এই তো টোটো वाला ও ভাইয়া যাওগে। চল 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 চল। আমার হিন্দি বাংলা পা ব্যথা হয়ে গেছে না আমার। আরে একটা সিটে ফাঁস জন, এই দিকে অটোটা আসতে থাকে, ও এটা তো বলছি। চল চল চল। তিনজন কি একটা সিটে রেখে এটা জানকি ছোলা। আমরা দেখি। নতুন হয়েছে, হ্যাঁ নতুন হয়েছে, আমরা তখন একটু কিছু দেখিনি, চিনতে পারছি না।
कितना 25 मई को था, 25 मई को 25 ना। मई को। अच्छा, मैं पहले भी आया था इस उस समय तरह नहीं था, नहीं था। 2020 के पहले हाँ इधर कोई आता नहीं था इस साइड में। अच्छा। जब जानकी झूला बन गया हाँ उसके बाद इसका धीरे धीरे रिपेयरिंग चालू हो गया। अच्छा अच्छा जानकी झूला बनने के बाद 3 साल हुआ जानकी झूला को बने। अच्छा। ज़्यादा पुराना नहीं है, 2020 में रिपेयरिंग हुआ इसका, रेडी हुआ। আচ্ছা আরে এগুলো সব নতুন হয়েছে না এই জিপ নাহলে চিনতে পারবো না, আমরা এসেছি যখন তখন এসব ছিল, এসব কিচ্ছু ছিল না। হ্যাঁ ওই শিব ঠাকুরটা, শিব ঠাকুরটা ये परमार्थ निकेतन है। हाँ 2013 जो बाढ़ आई थी ना केदारनाथ बद्रीनाथ में, हाँ, ये- शिव जी का मूर्ति डूबते हुए दिखा था, यहाँ तक पानी आता, वो मूर्ति यहीं का है। गोला अब्दी वो मूर्ति बह गई, इसके जगह पे दूसरा मूर्ति बना है। इसके बारे में पूरी स्टोरी आपको यहाँ बताओ, में आ जाओ थोड़ा। गोला अब्दी एक हाथ धोबे নাকি মুখ বেঁধেছিল জানেন? হ্যাঁ কালকে ওই হোটেলের মালিক थोड़ा स्टोरी बता दूँ आप लोग को झूला के बारे में। देखिए दादा, गाइड का मतलब होता है दर्शन के साथ साथ जानकारी। जानकारी मेन होता है, मंदिर आपके घरों में भी है, सबसे मेन होता है जानकारी। हम आपको उत्तराखंड के बारे में, ऋषिकेश के बारे में, राम झूला लक्ष्मण कैसे बना, इसके बारे में बताएंगे। देखिए उत्तराखंड जितना भी है देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ऋषिकेश तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। इसका नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्वी ज़्यादा रहा करते थे, इसलिए ऋषिकेश के नाम से प्रसिद्ध है। राम झूला लक्ष्मण गंगा पार करने का साधन है, इसे न राम जी बनवाए न लक्ष्मण जी बनवाए, इसे यहाँ की गवर्नमेंट बनवाई है। 1924 के पहले जो लक्ष्मण झूला था वो लकड़ी का झूला था। वो भी लकड़ी का झूला कैसे बना था? कलकत्ता के जो नागरमल सूरजमल सेठ थे अपने परिवार के साथ यहाँ पे घूमने आए। घूमते समय उन्हें बड़ी परेशानी हुई थी, उनकी पत्नी मरते समय कह के गई थी वहाँ पे एक साधन बना देना। वही 1910 में एक लकड़ी का झूला बनवाए। जब 1924 में बाढ़ आई तो लकड़ी का झूला बह गया। उस समय यात्रा बंद, यात्री पारी में बड़ी परेशानी होती थी। उस समय ब्रिटिश सरकार था, अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने 1930 में लकड़ी के झूले को हटा दिया और लोहे के पुल से उसकी मजबूती बनाई, तब से लक्ष्मी प्रसिद्ध है। और यहाँ से 500 मीटर आगे राम झूला है। इस झूले का निर्माण यहाँ के स्वामी शिवानंद जी के हैं। इसका काम 1985 में चालू हुआ, 1986 में बनकर तैयार हो गया। इसकी कुल लागत 1 करोड़ 2 लाख रुपया लगी है, जिसमें से 51 लाख रुपया स्वामी शिवानंद जी दिए और 51 लाख यूपी गवर्नमेंट दी। पहले यूपी गवर्नमेंट था, 2000 में इसका बंटवारा हो गया, यूपी अलग हो गया, उत्तराखंड अलग हो गया। उसको राम झूला के नाम से जाना जाता है और स्वामी शिवानंद झूला के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका नाम राम झूला लक्ष्मण क्यों पड़ा? जब श्री राम जी रावण कुमार के लंका से वापस आ रहे थे तो उनके मन में एक भावना, पश्चाताप की भावना। आप सबको पता होगा, ब्राह्मण को मारने ब्राह्मण दोष लगता है, गौ को मारने पे गौ हत्या लगती है। रावण एक ब्राह्मण था। त्रेता युग में राम जी ने रावण का वध किया था, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था और शत्रुघ्न ने असुर को मारे थे। इसलिए रघुकुल वंशज को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इन दोषों से मुक्त होने के लिए उनके चारों भाई उत्तराखंड में आके तपस्या किए थे। भरत भाई ऋषिकेश में तपस्या किया, त्रिवेणी घाट में। लक्ष्मण जी लक्ष्मण झूला पे, शत्रुघ्न मुनि की रेती गंगा पार आप जितना भी देखते हैं ये सब मुनि की रेती में आता है। यहाँ पे शत्रुघ्न तपस्या किए थे और श्री राम जी देवप्रयाग गए। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर देवप्रयाग है, वहाँ पे जाके तपस्या किए थे। इस तपस्या से उन्हें ब्राह्मण दोष से मुक्ति मिली थी। इन्हीं वजह से जैसे जैसे ब्रिज बना तो पब्लिक ने नाम रख दिया, बड़े झूले को राम झूला और छोटे झूले को लक्ष्मण झूला। इसी बगल में झूला बना आपका सीता झूला, जानकी सेतु भी कहते हैं, जो 20 नवंबर 2020 को इसका ओपनिंग था, तब से स्टार्ट है। 3 साल हुआ इसको रेडी होकर। और गंगा का नाम है भागीरथी गंगा। भागीरथ जो पूर्वज थे 60 हजार पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, उनके आत्मा को शांत करने के लिए भागीरथी तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाए। वही गंगा जी शंकर जी के जटा के माध्यम से हिमालय पाई हैं। हिमालय से गोमुख होते हुए गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए ऋषिकेश के रास्ते हरिद्वार गई हैं। हरिद्वार से निकली इलाहाबाद में गई हैं, जो गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। इलाहाबाद से बनारस गई हैं, जो काशी गंगा के नाम से जानी जाती है। और पटना के रास्ते कलकत्ता गई हैं, जो गंगा सागर के नाम से जानी जाती है। और गंगा सागर में जाके समाप्त हुई है। इसका त्रिवेणी संगम 2 जगह। पहला त्रिवेणी संगम आपका देवप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी मंदाकिनी, और दूसरा त्रिवेणी संगम आपका इलाहाबाद प्रयागराज में, गंगा जमुना सरस्वती। अब हम इस घाट के बारे में बताएंगे। ये परमार्थ निकेतन गंगा आरती घाट है, जो शाम को 6 से लेकर 7 बजे होता है, स्वामी चिदानंद सरस्वती के माध्यम से। आस्था चैनल संस्कार चैनल पर आप देखते होंगे, अक्सर गंगा आरती यहीं का दिखाया जाता है। और 2013 में जो बाढ़ आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ में, शिव जी का मूर्ति डूबते हुए दिखा था, यहाँ तक पानी आया था। वो मूर्ति यहीं का है, वो मूर्ति बह गई, उसके जगह पे दूसरा मूर्ति बनाया गया। अच्छा जो वो मूर्ति बह गई, गंगा जी में निकल गया, मिला नहीं। मिला नहीं ना, ये ना 16 फीट की खड़ी मूर्ति थी। हाँ, अब ये लेकिन 11.5 पूरा फीट बह का गया वो तो था। बह गया। अब ये 11.5 फीट का बैठा हुआ मूर्ति बना। हाँ। 5 साल इसको प्रशासन बनने नहीं दिया। मूर्ति थोड़ा बीच में था, गंगा जी के बीचों बीच सेंटर में, वहीं पर बना दे। प्रशासन इसको रोक दिया, थोड़ा साइड में बनाओ, कहीं दोबारा बाढ़ आएगी, आपदा आएगी, फिर मूर्तियाँ बनेंगी, एक मीडियम सनसनीखेज हो जाएगा।
2018 में इस मूर्ति को साइड में बनाया 11 फीट का। तो यहाँ पर दर्शन कर लीजिए, फोटो लें तो ले सकते, कोई रोक नहीं है। उसके बाद अंदर चलेंगे, कांच का मंदिर है, विष्णु जी का विराट रूप 24 होता है, पीपल के पेड़ में गणेश जी है, कल्पवृक्ष का पेड़ है, रुद्राज का पेड़ है, एक मुखी का दर्शन, बर्फ का शिवलिंग का दर्शन ये आश्रम के पीछे साइड में। ये टोटल दर्शन यहाँ पे है। और यहाँ किसी भी मंदिर में दान दक्षिणा चढ़ावा नहीं, कहीं आपका पैसा नहीं लगेगा। अपने मर्जी से 10-5 रुपये कहीं दान करना, आप दान पेटी में दान कर सकते हैं। यहाँ पे पंडा वाला सिस्टम नहीं है, ना ही कहीं पूजा पाठ होता है, केवल दर्शन करिए, तो जाकर दर्शन करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग दर्शन करके आ जाइए। ठीक ठीक। जूता चप्पल निकालने की जरूरत नहीं है, जब तक गंगा जी में पैर डालो तब तक। কত কিছু জানতে পারলাম বল, আমরা এত কিছু করেই জানি। দাদা জুতোটা খুলে নাও, গঙ্গায় নামলে ওখানে যেতে দেবে না না। এইখানেই আসতে বলছিল। आइए सब लोग आ गए। হ্যাঁ কৃষ্ণনগর মূর্তি দেখিস। एक मिनट रुकिए। देखिए दादा, ये परमार्थ निकेतन का फिल्म शूटिंग एरिया है। यहाँ पे फिल्मों का शूटिंग होता है, धारावाहिक, एपिसोड, धार्मिक फिल्म, ये उसके हिसाब से बनाया गया है। अर्जुन पंडित मूवी देखें, सन्नी देओल का अर्जुन पंडित यहीं पर शूट हुआ है। 32 मीटर चालू, दम लगा के हैचा। 8 महीना पहले अमिताभ बच्चन आए थे, पुष्पा जो हीरोइन रश्मिका मंदाना, 6 दिन थे यहाँ पे गुड बाय मूवी का शूटिंग करते। अच्छा दम लगा हाई से कौन सा सीन ये जो शूटिंग? कंधे पे लेकर दौड़ता है ना, सब ये बाहर का साइड, घाट के साइड, दूसरे में पानी नहीं, हाँ कंधे पे लेकर दौड़ता है, वो सब वही का सीन है। अच्छा 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 चलो चलो ब्रिज का पेड़ देखिए। हेलो কত কিছু জানা। হ্যাঁ কল্পবৃক্ষ। जो सामने पेड़ देख रहे हैं ना बड़ा वाला, जिसमें लाल कलर का धागा बांधा हुआ है, ये कल्पवृक्ष का पेड़ है, मनोकामना वृक्ष। आपके बंगाली में कल्पतरु गाछ बोलते हैं। হ্যাঁ কল্পতরু গাছ। समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकला था, उसमें से एक रत्न कल्पवृक्ष, इसे मनोकामना वृक्ष कहते हैं। जो कुछ भी आपको मनोकामना मांगना, आप यहाँ से मनोकामना मांग सकते हैं, मनोकामनाएं पूरा हो जाता है। जब मनोकामना पूरा होता है, बातें स्वामी जी मिल के अंदर जाते हैं, परिक्रमा करके लाल धागा बांध के मनोकामना को तोड़ते हैं। मनोकामना तोड़ने के लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ कहीं भी नज़दीक में कल्पवृक्ष का पेड़ है, वहाँ पर भी आप परिक्रमा करके लाल धागा बांध के मनोकामना को तोड़ सकते हैं। वैसे अपने इंडिया में 6 जगह है। एक तो जोशीमठ में है, केदारनाथ जाएंगे जोशीमठ वहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यूपी में बाराबंकी में है, एक जगन्नाथपुरी में है, रामेश्वरम में है, एक राजस्थान में पुष्कर मंदिर अजमेर में, वहाँ पे 6-7 पेड़ है। जहाँ भी आपको नज़दीक पड़े वहाँ पे जाके परिक्रमा करके लाल धागा बांध के मनोकामना को तोड़ सकते हैं। इसका पहचान होता है। आप लोग बेल पत्र देखें, बेली पत्र, बेल पत्र में एक पत्ते में 3 पत्ता होता है, इसका एक पत्ते में 5 पत्ता, ऐसे फूल की तरह खिला हुआ, ध्यान से देखो, आप पत्ते में 5 पत्ता। बेल पत्र में 3 पत्ता ज्यादा होता है, 5 पत्ता कम होता है। इसमें 5 पत्ता ज्यादा होता है, 3 पत्ता कम होता है। पेड़ जोड़ा ही पैदा होता है, नर और नारी। आगे वाला नर है, पीछे वाला नारी। जो भी मनोकामना मांगना, आप लोग मनोकामना मांग सकते हैं। जाना तो अंदर जा सकते हैं। इसमें थोड़ा बड़ा होता है, परहेज होता है। अगर आप तन मन से शुद्ध है तो उसको टच कर सकते हैं, क्योंकि स्त्रियां जो होती महीने में 1 बार शुद्ध होती है, उन सबको नजर में रखकर तब उसको टच करिएगा। ठीक है, अभी धागा बांधने की अभी नहीं जरूरत है। पूरा होने के बाद अभी क्या करना? खाली बस एक परिक्रमा करके मनोकामना मांग के आ जाइए, और कुछ नहीं। ठीक आपको करने के ऊपर एक चक्कर लगा দাদা দাদা क्या कुंदन
मूर्तियाँ हैं कांच के अंदर बनी, इसी से कांच का मंदिर कहा जाता है। माता देवी की जाति, कृष्ण सुदामा, माता अम्बे का मंदिर, सरस्वती माता का मंदिर, शंकर भगवान का पंचमुखी अवतार, स्वामी शंकराचार्य का मंदिर है, बीच में राधे कृष्ण का मंदिर है, राम सीता का मंदिर है, शिव जी का मंदिर। दर्शन करके आ जाइए आप, ठीक है। फोटो लेना तो ले सकते, कोई रोक नहीं। হ্যাঁ এই তো এইদিকেও আছে। সবগুলো ওর জন্য কাজ মন্দির বলা হয়। সরস্বতী মানে নারায়ণ এখানে কৃষ্ণ আর এখানে। মন্দিরটা রেডি হচ্ছে এখানে অনেক কিছু তৈরি হচ্ছে। এসব আগে কিছুই ছিল না। देखिए ये जो लाइन आप 3 पेड़ देख रहे हैं बड़े वाले, 300 साल पुराना पेड़। जो तीसरा नंबर है ना, जहाँ हम लोग बैठे हैं, यूपी बिहार में पाकड़ बोलते हैं, पकड़ी का पेड़। यहाँ पर पिलखन कहा जाता है, इंग्लिश में उसको फिकस बारेंस बोलते हैं। वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होता है, बाकी जगह पर नहीं होता। उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। बीच में बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री, इसे बड़ वृक्ष बोलते हैं, इसमें शिव जी का वास होता है। ये पीपल का पेड़ है, इसमें विष्णु जी का वास होता है। और कहा जाता है पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। और हमारे पूर्वज की जो आत्माएं होती हैं वो भी पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। और साइंस के हिसाब से माना जाए तो पीपल का पेड़ में 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र पेड़ होता है पीपल का पेड़। इन तीनों पेड़ों की जड़ एक दूसरे से कनेक्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसमें एक नेचुरल आकृति गणेश भगवान, वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर खड़े हुए तो यहाँ पर इससे आगे कुछ नहीं करेगा। जो देख रहा है ना, हट ये जो सीधा गया है ना, ये हाथी का सूंड है, दिखा हाथी का सूंड। और यहाँ पे दांत बना हुआ है, दांत दिखा, दांत से ऊपर 3 इंच पर यहाँ पे दांत बनी है, इधर भी आँख है, इतना स्पष्ट मुंडी, स्पष्ट गणेश जी एक दांत वाले दिख रहा है। एक दंत हाथी अपना सूंड जाता, नीचे वाला पार्ट दिखाई देता है, आया समझ में। ये तो एक दंत है। अब हम आपको बिना दांत वाला दिखाएंगे, इधर आइए। विष्णु उस साइड से दिखाई देगा आपको, उस साइड हो जाइए। এই যে এই যে এই যে আমি দেখতে পেয়েছি। ये इनका माथा है, मस्तक। ये इनका सूंड है, दिखा। यहाँ पे एक आँख बनी, देख रहे हैं? ऐसे साइड से आप देखेंगे, अंदर क्लियर दिखाई देगा हाथी का सूंड। नेचुरल आकृति गणेश जी का, बिना दांत वाले। वहाँ पे एक दंत थे, बिना दांत वाले। ठीक है, आया समझ में। यहाँ से देखिए, यहाँ से एकदम क्लियर दिखाई देगा। ऐसे में आपको बराबर ये नवग्रह का मंदिर, राहु केतु सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। हमारा जीवन जो होता है ग्रहों पर निर्भर रहता है। इंसान जो कर्म करते हैं अच्छे बुरे, उनका फल में ग्रहों की मिलता है। इनको प्रणाम करें, नवग्रह का मंदिर है। এটা শিব, এই গাছে বাস করে শিব ঠাকুর। कलिजुग। देखिए सर, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, सब विष्णु भगवान के अवतार है। 24 होता है, जिसमें से 23 अवतार को 24वां बाकी कल की होता है। ये जो घोड़े बैठे हैं ना, कल की होता है। ये कलयुग के लास्ट में होगा। जो कलयुग को नष्ट करेंगे, सृष्टि का फिर से निर्माण होगा, तब से सतयुग चालू हो जाएगा। अभी हुआ ना भी बाकी है, अभी कलयुग को वही तो चाहिए ना, कब आएंगे? होने में 4,21,000 साल बाकी। हाँ पता है, अभी वही आपका 5,000 साल गया कलयुग। कई पीढ़ियाँ आएंगी, चलेंगे, बहुत टाइम लगेगा। हमारा उधर मायापुर है ना, हाँ। उधर भी दिखाया था। अच्छा, अच्छा। जो कलयुग का जो अवतार है वो सबसे बड़ा है। हाँ, और सत्ययुग त्रेता युग सब छोटा छोटा है। छोटा छोटा। हमारा उसका इस्कॉन मंदिर है ना, ये युग बहुत टाइम लगेगा इसमें। बहुत टाइम लगेगा। बहुत अभी हम चलेंगे रुद्राज का गांच देखने, थोड़ा उसके बारे में आपको स्टोरी बता दूं। बैठो, 2 मिनट बैठ सकते हैं यहाँ पे। स्टोरी यहाँ पे बता देता हूँ, पेड़ आगे दिखा दूंगा आपको। यहाँ बैठ जाइए तो 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। देखिए, अभी जो दिखाएंगे रुद्राज का गांच, ये भगवान शिव के आंसू से उत्पन्न हुआ। इसमें सबसे दुर्लभ होता है एक मुकुट राज, जो 12 साल पे एक पेड़ पे एक बार एक ही फल आता है। इसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र मानते हैं।
लाखों करोड़ों रुपए देने पे भी उसका सेल बिक्री नहीं होता है, केवल दर्शन होता है। उसका एक दर्शन अन्य हजारों मंदिरों के दर्शन के बराबर होता है। और उसके एक दर्शन से जीवन में कोई भी जाने में भूल चूक चाहे कोई पाप चाहे कोई गलती आता है, इसके एक दर्शन से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसका दर्शन 2 जगह होता है। पहला दर्शन होता है आपका नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, वहाँ पे कराया जाता है एक मुकुराज का दर्शन। और दूसरा दर्शन होता है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में आप गवर्नमेंट कराती है, गवर्नमेंट संस्था है। तो एक मुकुराज का दर्शन बर्फ का शिवलिंग, जिसको स्फटिक शिवलिंग कहते हैं, जो रामेश्वर में श्री राम जी जिस शिवलिंग की स्थापना किए थे, उस शिवलिंग का दर्शन और नवग्रहों के बारे में जानकारी और रुद्राक्ष का असल नकल का पहचान। क्योंकि मार्केट में लोग लकड़ी कांटे का, सीमेंट का, प्लास्टिक का बना के बेचते हैं। ऊपर से कारीगरी कर देता है, ओम बना देगा, त्रिशूल बना देगा, शिवलिंग बना देगा, अंदर क्या इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इन सब की जानकारी गवर्नमेंट संस्था में फ्री मिलती है। रुद्राक्ष 2 तरह का होता है, एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष। दोनों ओरिजिनल है। दोनों में अंतर क्या है? ओरिजिनल रुद्राक्ष से बोलते हैं जो पेड़ पर से पक के निकलता है, उसे गवर्नमेंट लेबोरेटरी टेस्ट संस्था में लगती है। भद्राक्ष से बोलते हैं पेड़ पर लाखों फल होते हैं, कुछ फल होता है हवा धूप गर्मी से कच्चे पकने से नीचे आ जाते हैं, उसे भद्राक्ष बोलते हैं। उसे गवर्नमेंट उठाकर उत्पाद वालों को फ्री में दे देती है, जो कम दाम कम रेट कम पैसे में बेचते हैं। 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 150 200 रुपया करके बेचते हैं। लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता है, कच्चा फल होता है। साल 2 साल 3 साल रखने के बाद ये टूट के बिखर जाता है, खराब हो जाता है। उसके अंदर कोई पावर कोई एनर्जी नहीं होता है। इस पट्टी उसे बोलते हैं। हिमालय पर 12,000 15,000 फीट तक बर्फ गिरता है। ऊपर का जो बर्फ होता है हवा धूप गर्मी से पिघल के नदी में आ जाता है। नीचे का जो बर्फ होता है कई हजार फीट नीचे दब जाता है, सैकड़ों साल लग जाता है। हवा धूप गर्मी न मिलने से अमोनिया सक्रिया करके जम के पत्थर हो जाता है। उसी पत्थर को काट के गवर्नमेंट निकालती, तराशती है, तराश के इस पट्टी का शिवलिंग बनाती है, इस पट्टी का श्रीयंत्र बनाती है, जो लक्ष्मी का यंत्र माना जाता है, जो वास्तु दोष, दिशा दोष, जमीन दोष या कोई तंत्र की क्रिया उसको दूर करता है। 84 रत्नों में सबसे पवित्र पत्थर इस पट्टी माना जाता है। इसका क्या महत्व, क्या फायदा, ये पूरी जानकारी गवर्नमेंट संस्था में फ्री मिलती है। और वहाँ पे देखिए दर्शन के साथ साथ तेल बिक्री भी होता है। सब लोग नाम सुने होंगे, जल निगम, विद्युत निगम, परिवहन निगम, वैसे उत्तराखंड का और निगम है। दर्शन के अलावा आप कुछ लेने की इच्छा थोड़े सकते हो, नहीं लेना है, दर्शन कार्य लेकर बाहर जाओ, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। कोई भी सामान लेंगे, हर सामान के पीछे आपको 50% का छूट होता है। 10 साल की गारंटी, 10 साल के बीच में कभी भी वापस करेंगे आपका 50% पैसा रिटर्न होता है। और एक छिलका हटाएंगे, उसके अंदर जो बीज निकलते हैं उसको रुद्राक्ष बोलते हैं। रुद्राक्ष 3 जगह पाया जाता है, इंडोनेशिया, नेपाल, उत्तराखंड। इंडोनेशिया में 1 मुख से लेकर 16 मुक्त रुद्राक्ष होता है। नेपाल में 1 मुख से लेकर 21 मुक्त रुद्राक्ष होता है। और उत्तराखंड में 1 मुख से लेकर 14 मुक्त रुद्राक्ष होता है। ये जितनी मुखें होती हैं सब एक ही पेड़ पाते हैं। उसी पेड़ के अंदर जो एक मुखी होता है 12 साल पे एक बार आता है। पेड़ पे लाखों फल होते हैं, लाखों फल पे छिलका होता है। जब छिलका हटाए तो उसका मुख मालूम पड़ेगा, कब उसका 12 साल आया कब गया किसी को पता नहीं। और लाखों फल में कौन ढूंढेगा, इसमें से एक मुखी कौन है, इसलिए वो दुर्लभ होता, मिलता नहीं। वैसे अपने इंडिया में 2 लोग पहने हैं, एक तो इंदिरा गांधी, दूसरा बाला साहब ठाकरे, जो महाराष्ट्र के शिवसेना के अध्यक्ष थे। कभी भी देखिए उनका पोस्टर होगा यहाँ पर लटका होगा। हाँ, इंदिरा गांधी को नेपाल का राजा दिया था, बाला साहब ठाकरे को किसी स्वामी ने दिया था। इस समय मोदी जी के पास दिया गया, मोदी जी गए थे नेपाल में, नेपाल के राजा उनको दान में दे दिया। वैसे बाजार में लोग बेचते भी हैं एक मुखी, लेकिन एक मुखी नहीं, काजू जैसा होता है टेढ़ा सा, वो चंद्रमुखी, शिव जी के माथे का चंद्र का, उसकी खेती होती है। तो आपको आसानी से 2000, 2122 या 3000 में मिल जाएगा। लेकिन जो गोल होता है वो आप करोड़ों रुपया देंगे, लाखों रुपया देंगे, तो भी आपको नहीं मिलेगा। उसका केवल दर्शन होगा, वो हम आपको दर्शन करा दें। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा पेड़ है, 5 साल 6 साल का पेड़ है, वो देखेंगे। उसके बाद एक मुखी का दर्शन करके जब रामलीला की तरफ चलेंगे तो गीता वन में बहुत बड़ा पेड़ है, उसको मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, आगे देखिए, जो सामने ग्रीन जाली है ना, हरी वाली जाली, इसका जो पेड़ है ना, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। ऊपर से डाली को काट दिए हैं, तो थोड़ा लंबा था, क्यों काटा गया, थोड़ा जल्दी इसको तैयार हो जाएगा, इसको काटा गया। तो अभी ये 3-4 साल का पेड़ है, 4 साल या 5 साल का पेड़ है। बड़ा वाला पेड़ आपका गीता भवन, पहले पीछे करेंगे, उसके बाद वापस जब आएंगे गीता भवन रामलीला की तरफ, तो रास्ते में आपको बड़ा वाला पेड़ दिखाएंगे। ठीक है, যারা আমাদের ওখানেও হবে যখন মায়াপুর তৈরি হয়ে উঠবে। এখানে ঋষিকেশ তো যোগার होता है, एक आज से कटिंग ये कटिंग मरी है, जो सीलिंग देख रहे हैं ये बर्फ का पत्थर है। देखने में आपको कैसा लग रहा है, मार्बल जैसा लग रहा है ना, लेकिन है वो बर्फ का पत्थर। इस पत्थर को तराश के बनाया, इधर आ जाइए। ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, इस पत्थर को तराश के बनाया गया। जब इसको ज़्यादा तराशेंगे तो ऐसे पारदर्शी हो जाएगा। देखने में कैसा लग रहा है आपको, कांच है, प्लास्टिक, ये भी बर्फ का पत्थर है। जिस तरह से कोयले के खान में से हीरे का चट्टान निकलता है, उसको तराश के पारदर्शी करते हैं, वैसे इसे भी तराश के पारदर्शी करते हैं। जो बर्फ आपका 100 साल जमीन के नीचे दबता है वो स्फटिक बनता है, और जो हजारों साल तक जमीन में दब जाते हैं उसी में से कलर चेंज हो जाता है। देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ये सब देख रहे हैं। इसी में से आपका नीलम पन्ना पुखराज भी निकलता है। ये नीलम है, पन्ना अंदर 35-40 किलो का पुखराज भी रहता है। तो इसका क्या महत्व, क्या फायदा, पूरी जानकारी आपको सरकारी संस्था में फ्री मिलेगा, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। अंदर चल के दर्शन करेगा। ठीक है, जूता चप्पल ऊपर
ओम नमः शिवाय। हजारों मंदिरों के दर्शन करने का पुण्य होता है, सभी पापों से मुक्ति मिलता है। शंकर जी का तीसरी आँख मिलती है रुद्राक्ष एक मुक्ति। मुख कहाँ है इसमें? ये जो सामने लाइन है एक लाइन है, इसको बोलते हैं ना, दिख रहा है ना, और कोई लाइन नहीं है, वो लाइन को मुख बोलते हैं ना, दिख रहा है। हाँ हाँ ये ये कैसे रुद्राक्ष आता है ना, पंचमुख। बैठिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, हो गया। स्वर्गाश्रम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जूता चप्पल निकालेंगे, सेकेंड रामेश्वरम। शालिग्राम से, उसके बाद चोटी वाला होटल बगल में आपका राम, ठीक है। চটিওয়ালা রেস্টুরেন্ট আমাদের। আরে এসে দেখেছিলে তোমরা? দেখ ভালো রাজমা না কারি চাওয়া? কারি চাওয়াল, এই যাও পছন্দ? হ্যাঁ, তো খেয়ে বল কেমন? সফট। আচ্ছা তো খেয়ে দেখ। কেমন? সুন্দর, ভালো। এইটা আমাদের হিরো, আমাদেরকেও খেতে দিয়েছে, শুধু আচার দিয়েছে আমাদের। অনেক ভিড়। আমি আর আজ আরতি দেখতে এসেছিলাম, কিন্তু আরতি শেষ হয়ে গেছে, দেখাতে পারিনি কোনো, অনেক ভিড় তো দেখে নিয়েছে। আর এখানে গোলগপ্পা আছে, দেখা যাক কেউ খায় নাকি, নিয়ে গেল নিয়ে যাবো। কি বল? লেট করে কেন? আমাদের মেন ঋষিকেশের জামটার জন্য আমাদের আরও লেট হবে। তো ঠিক আছে, কোই বাদ নেই, আমাদের ওখানেও আমরা দেখেছি সব জায়গায় ঠাকুর এক। চলো দেখা যাক, যাই এবার। हाँ मोटर मोटर एनी कड़ाई छुट्टी कढ़ाई छुट्टी नहीं है रे। अरे वो क्या बोलते हैं, रायती के बूंदी। बूंदी। हाँ इसको बूंदी बोलती है ना। ठीक है, हाँ बूंदी पानी दे दिया 100। भैया थैंक यू भैया। ये এটা আমাদের ফুচকা লাগুন। कितने का भैया? कितने का भैया? कितने का? এই কত করে দিল? 100 টাকার 25টা, দুটো বেশি নিচে, পুরো আর 5টা। তাই তো। আর আলু একটুখানি আরে দিতে চায় না রে এরা, দিতে চায় না মানে? 4-5 किलोमीटर हेঁটে গেছি আমরা। वीडियो कॉल में दादा कहाँ में बनेगी? হ্যাঁ হ্যাঁ भाई कितने का भैया? 50 টাকা এক পিস। अरे हमारी बीवी की সোনার ফুচকা নাকি? সেটাই আমি অনেকগুলো খেয়ে নিয়েছি প্রথম দিন। এক্সপেন্সিভ ফুচকা 50 টাকার মধ্যে এক পিস, তাহলে বল। तसे काटता वीडियो मध्ये আমাদের খাই দাও, ভিডিওটা উঠছে তো, আমাদের খাই দাও। খাওয়া দাওয়া এটা আমরা সবাই ফুচকা খেতে ব্যস্ত এখানে। এটা কোনো ভিডিও করছে না, এটা কি দেখা এখন খাওয়া। আমরা এখন সবাই ভিডিও করতে, এই ভিডিও করতে, দাদা। ফুচকা খেতেই ব্যস্ত। আপনি আমাকে খাই দিন, আপনার কৃপায় আমরা ঘুরতে এসেছি। বাবা কি সুন্দর দেখ এগুলো, বেশ ভালো লাগছে। এটাই নিয়ে ভাই, ছোট লাগবে। हाँ, इस साइज में छोटा होगा, इस साइज में छोटा। ये जो है ना, वो तो वो वाला है ना, वो साइज का होगा। उस साइज में इस कांच में नहीं होगा, डिजाइन में। ये जो डिजाइन है उस साइज में आएगा, इस साइज में। है ना। दाम दादा कम नहीं होगा? আমার আইডিয়া নেই, এই সিন সম্বন্ধে আমার আইডিয়া নেই। अरे एक दाम में सही दाम नहीं है, इसलिए तो बोला ना, थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। थोड़ा कम कीजिए। আজকে তো পুরো হরিদ্বার ঘুরলাম, যে মন্দির ঘুরলাম, যাই করলাম, তোমাদের সাথে পুরোটা শেয়ার করলাম। আশা করি তোমাদের খুব দেখে ভালো লাগলো। কালকে হচ্ছে আমাদের দিল্লি যাত্রা, কিন্তু এখনো দিল্লিতে আমরা যাবো, sure করিনি যে কি করব। পুরোটা কিছু
যদি যেটাই করব তোমাদের সাথে শেয়ার করব। করবো, তোমরা তো আর দেখতেই তোমরা পাবে। কিছু মনে করো না, আমরা কেদারনাথের ভিডিওটা এখনো ছাড়িনি, কারণ এত এখানে problem ওই ভিডিওটা আছে, একটুখানি লং তো ছাড়ার মতো নেট আমরা প্রবলেম আছে, প্লাস হচ্ছে নেটও পেয়ে উঠিনি অতটা। ওটাই হচ্ছে মেন কথা। যাই হোক, ওটা হয়তো বাড়িতে গিয়েই ছাড়বো। সেটাই যাই হোক, আমি ডে 3 তো লিখছি, কিন্তু ওটা আমরা বদ্রীনাথের আগে গেছি, হ্যাঁ, ফার্স্ট ডে মানে ফার্স্ট ডে না না সেকেন্ড ডে, সেকেন্ড ডেতে মানে সেকেন্ড ডেতে ওটা হবে। গেছি। তবুও যেটা আগে পারছি সেটা যেটুকানি পারছি নেট যেখানে পারছি সেটুকানি তোমাদের সাথে আপডেট দিচ্ছি। তো তোমরা এইভাবে আমার সাথে থাকো আর ভিডিওগুলো দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো চলো আজকের ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করলাম, টাটা বাই, আবার নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হবে। गुड नाइट। গুড নাইট।